Hey friends, this is Pooja Agnihotri and I'm here again with this new series of integrated solid waste management, a very important subject for all the engineering students, not only the engineering students but also for the students who are doing preparation for civil services examination, UPSC civil services examination, because it's a very important topic of environment and ecology. So let's start with the first we'll go through the syllabus. So the very first unit we have to study about the solid waste, including the public health and ecological impacts, sources and types of solid waste, material flow and waste generation, functional elements, waste generation like the storage, collection, transfer and transport, processing and recovery and disposal, physical and chemical composition of municipal solid waste, integrated solid waste management, hierarchy of waste management options, different methods for generation rates, storage, movable bins, fixed bins, collection, home to home collection, community bin system, theory and design of halt container system, stationary container system, and all these things. In the second unit, we'll study about the transportation, that is the handcraft, tricolor, animal cart, tripper truck, dumper place, cubing, pelleting equipments, about the engineering system for on-site handling and processing of solid waste. All these things we'll study in the second unit. In the third unit, we'll study about the landfilling, like the site selection criteria, landfill layout, landfill sections, occurrence of gases and leachate in landfills, composition and characteristics, acid formation phase, methane formation phase, different phases we'll study in the unit 3. In unit 4, we'll study about the composting, types of composting, process description, design and operational consideration of aerobic composting, incineration, pyrolysis system, energy recovery system, all the overview of the solid waste management practices in India. In the fifth unit, we'll study about the introduction to hazardous waste, the definition of hazardous waste, the magnitude of the problem, hazardous waste risk assessment, environmental legislation, characterization and site assessment, waste minimization and resource recovery, transportation of hazardous waste, disposal, introduction of electronic waste and biomedical waste and their disposal. So let's start with the very first topic, that is what is solid waste management. Basically, solid waste is any kind of unwanted or useless solid materials that is generated from different domestic, traced, commercial, agriculture, industrial activities. Like we can take the examples like the any kind of garbage, rubbish, sludge and other rejected solid and semi-solid materials. Solid waste basically consists of four things, that is the garbage, litters, rubbish and refuse. In garbage, it includes the food waste and other degradable organic waste. Litters consist of the paper bits, bottles, etc. Rubbish consists of the combustible and all the non-combustible solid waste, leaving the food waste. Refuse consists of the both the garbage and rubbish waste. Now we study about the sources of solid waste. There are very different kind of sources of solid waste, like the domestic and household waste, industrial waste, stable waste, street and market waste, hospital waste. In domestic waste, it includes the ash, rubbish and garbage, etc. Industrial include basically the wide variety from inner to highly toxic and explosive waste. Stable waste basically includes animal waste, and they are from the stables. Okay, they are generated from the stables. Hospital waste we they include the cottons, bandages, medicine containers, glass, plastics, all these kinds of waste. Street and market waste जो होते हैं, they include the rubbish, paper, droppings, etc. ठीक है. Now let's study about the classification of solid waste. Basically, solid waste are classified into two broad categories on the basis of source and type. Source based जो classification होता है, it includes the residential, commercial, institutional, municipal, industrial, agricultural and open areas waste.
रेजिडेंशियल वेस्ट में बेसिकली होता क्या है, ये वेस्ट होते हैं जो कि ड्वेलिंग से होते हैं, अपार्टमेंट से जनरेट होते हैं, लाइक दी लेफ़्ट ओवर फूड हो गए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, जो पील्स होते हैं वो हो गए, प्लास्टिक वेस्ट हो गए, क्लोथ्स हो गए, एशेस हो गई, ये सारे आ जाते हैं रेजिडेंशियल वेस्ट में। कमर्शियल वेस्ट में आता है लाइक दी ग्लासेस, मेटल्स, एशेस, लेफ़्ट ओवर फूड जो कि जनरेट होता है स्टोर से, रेस्टोरेंट से, मार्केट से, होटल से, मोटेल से, या ऑल जो ऑटो रिपेयर शॉप्स होती हैं, इन सारी जगह से जो जनरेट होता है, ये हमारा कमर्शियल वेस्ट में आता है। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट जो होते हैं ये जनरेट होते हैं एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक बिल्डिंग से, जैसे कि स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गए, ऑफिसेज हो गए, प्रिजन्स हो गए, ये सारी चीज़ें। इसमें जो एग्जांपल्स हैं बेसिकली वो हैं जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लासेस हैं, ये सारे बेसिक एग्जांपल्स हैं। ठीक है। म्यूनिसिपल वेस्ट जो होते हैं ये जनरेट होते हैं वेरियस म्यूनिसिपल एक्टिविटीज़ से, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, डेमोलिशन हो गया, स्ट्रीट की क्लीनिंग हो गई, लैंडस्केपिंग होगी, सारी एक्टिविटीज़ से। और ये इंक्लूड करता है डस्ट को, लीफी मैटर को, बिल्डिंग डेब्रिस को, ट्रीटमेंट प्लांट जो रेजिडुअल स्लज होते हैं, इन सारी चीज़ों को म्यूनिसिपल वेस्ट जो है वो इंक्लूड करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं ये होते हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ लाइक द प्रोसेस वेस्ट, एशेस, डेमोलिशन, कंस्ट्रक्शन एंड हजार्डस वेस्ट। ठीक है। एग्रीकल्चरल एंड जो ओपन एरियाज वेस्ट होते हैं ये भी सोर्स बेस्ड वेस्ट होते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होते हैं ये जनरेट होते हैं फील्ड से, ऑर्कार्ड से, वाइनयार्ड से, फार्म से, इन सारी जगहों से जनरेट होते हैं। और ये इंक्लूड करते हैं स्पॉइल्ड जो फूड ग्रेन्स होती हैं या सड़े हुए जो वेजिटेबल्स होती हैं, इन्हें इंक्लूड करते हैं। एग्रीकल्चरल रिमेन्स, लिटर, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। ओपन एरियाज वेस्ट जो होते हैं ये वेस्ट जनरेट होते हैं उन एरियाज से लाइक दी स्ट्रीट्स हो गई, एलीज, यानी जो एलीज वो होती हैं जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, पतली पतली गलियाँ जो होती हैं, ठीक है, वहाँ से जनरेट होते हैं ये। एंड पार्क्स हो गए, वीकेंड लॉट्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, बीचेस हो गए, हाईवेज हो गए, रिक्रिएशनल एरियाज़ हो गए, इन सब जगह से जो है ये वेस्ट जनरेट होते हैं। ठीक है। अब आता है जो टाइप बेस्ड हमारी सॉलिड वेस्ट होते हैं, वो 3 कैटेगरीज में होते हैं। एक तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि गार्बेज है, एशेज़ है, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल वेस्ट हैं, बल्की वेस्ट हैं, स्ट्रीट एंड डेड एनिमल के वेस्ट जो होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, हज़ार्डस वेस्ट जो होते हैं, फार्म होते हैं, फार्म से जो वेस्ट जनरेट होते हैं, स्वीज वेस्ट जो होते हैं, ये सारे जो हैं ये टाइप बेस्ड वेस्ट होते हैं। ठीक है। अब टाइप बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। गार्बेज जो होता है ये एनिमल और वेजिटेबल वेस्ट होता है जो रिज़ल्ट करता है सेल से, स्टोरेज से, प्रिपरेशन से, हैंडलिंग से, कुकिंग से एंड फूड की सर्विंग से। एशेज़ एंड रेजिड्यूज़ जो होते हैं ये सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बचे होते हैं आप फ्रॉम द बर्निंग ऑफ वुड हो गया, चारकोल हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया, जितने भी कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं उनसे उनके जो रिमेन्स होते हैं ये वेस्ट वहाँ से जनरेट होते हैं। जैसे कि कुकिंग के लिए हो गया, हीटिंग इन हाउसेस हो गया, इंस्टीट्यूशंस एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स। ये जो है ये क्लासिफाइड एशेज़ और रेजिड्यूज़ जो होते हैं ये क्लासिफाइड हो जाते हैं फर्दर एज इंडस्ट्रियल वेस्ट जब ये लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होते हैं एज इन पावर जनरेशन प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज। कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल वेस्ट जो होते हैं ये वेस्ट जनरेट होते हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, हाउस होल्ड्स, कमर्शियल एक्टिविटीज़ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, बट ये एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड जो नहीं करते हैं वो है फूड वेस्ट एंड अदर हाईली पट्रिसाइबल वेस्ट, यानी पट्रिसाइबल वेस्ट जो होते हैं या जो मटीरियल्स होते हैं इन्हें ये इंक्लूड नहीं करते हैं। कंबस्टिबल मटीरियल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पेपर, रबर, कार्डबोर्ड, टेक्सटाइल्स, ये सारे। और नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स जो होते हैं वो होते हैं ग्लास, टिन, क्रॉकरी, डर्ट, एल्यूमिनियम एंड कैंस हो गए, जो प्लास्टिक के कैंस होते हैं, फेरस एंड ऑल दी नॉन फेरस मटीरियल्स। ठीक है। बल्कि वेस्ट वो होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं लार्ज हाउस होल्ड अप्लाइंसेस को, जैसे कि फर्नीचर हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गए, व्हीकल्स हो गई, पार्ट्स हो गए, टायर्स हो गए, वुड हो गया, ट्रीज़ हो गई, ब्रांचेस हो गई, ये सारे बल्कि वेस्ट में आते हैं। और ये रिक्वायर करते हैं स्पेशल कलेक्शन मैकेनिज़्म को। स्पेशल कलेक्शन मैकेनिज़्म ये इसलिए रिक्वायर करते हैं बिकॉज
इनका ये जो है, इनकी जो पैकिंग है ये स्मॉल स्टोरेज जो बोर्ड्स होते हैं उनमें नहीं हो सकती है, ये लार्ज स्पेस रिक्वायर करते हैं अपने स्टोरेज के लिए, इसलिए ये जो है स्पेशल कलेक्टिव मैकेनिज्म रिक्वायर करते हैं। स्ट्रीट वेस्ट जो है ये वेस्ट वो होते हैं जो कि कलेक्ट होते हैं स्ट्रीट से, एलीज यानी कि पहले भी मैंने बताया जो पतली गलियाँ होती हैं उनका मतलब होता है एलीज, वॉकवेज हो गए, पार्क्स हो गए, वीकेंड प्लॉट्स हो गए, इंक्लूडिंग दी पेपर, प्लास्टिक्स, डर्ट, लीव्स, जितने भी वेजिटेबल मैटर्स हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, ये सारे हो गए। ठीक है, अब स्ट्रीट वेस्ट में जो लिटरिंग है, जो लोग आपने देखा होगा जगह जगह पे थूक देते हैं, ये पब्लिक प्लेसेस में, ये काफ़ी जो है बहुत ही वाइड स्प्रेड और एक एक्यूट प्रॉब्लम है हमारी इंडिया में भी जो प्रिवेल कर रही है और मैक्सिमम वर्ल्ड की कंट्रीज़ में भी प्रिवेल कर रही है। तो ये बहुत ही एक्यूट एंड वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है। एंड नेक्स्ट जो आता है वो है डेड एनिमल्स का वेस्ट। ये वो वेस्ट होते हैं जो जनरेट होते हैं जब एनिमल्स जो होते हैं वो नेचुरली या फिर एक्सीडेंटली जो है वो किल हो जाते हैं, रोड पे मर जाते हैं नेचुरली वो। तो ये दो पार्ट्स में या दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, एक तो लार्ज एनिमल्स का ग्रुप एंड दूसरा स्मॉल एनिमल्स का ग्रुप। लार्ज एनिमल्स के ग्रुप में आते हैं हॉर्सेस, काउज, गोट्स, पिग्स एक्सेट्रा। स्मॉल एनिमल्स के ग्रुप्स में आते हैं डॉग्स, कैट्स, रैट्स, रैबिट्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो एनिमल्स हैं जब ये नेचुरली मर जाते हैं, एक्सीडेंटली किल हो जाते हैं रोड पे, तो अगर ये उस टाइम पे इनको कलेक्ट नहीं किया जाता है तो काफ़ी ये हमारे लिए, हमारी पब्लिक हेल्थ के लिए काफ़ी एक थ्रेट बन जाते हैं। बिकॉज ये क्या है कि फ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं और अदर वर्मिन्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो ये सड़ने लगते हैं, इन पे मक्खियाँ लगने लगती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है अबेंडोन्ड व्हीकल्स। ये इंक्लूड करते हैं ऑटोमोबाइल्स को, ट्रक्स को, ट्रेलर्स को जो हैं, एंड ये अबेंडोन्ड होती हैं ऑन स्ट्रीट्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट जो होते हैं ये जनरेट होते हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट एंड रिपेयर एंड डेमोलिशन ऑफ हाउसेस से, कमर्शियल बिल्डिंग से और अदर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि अर्थ हो गया, स्टोन हो गया, कंक्रीट है, ब्रिक्स हो गए, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, प्लम्बिंग मटेरियल्स हो गए, ये सारे ये इंक्लूड करते हैं। फिर आता है हमारा फार्म वेस्ट। फार्म वेस्ट जो है ये रिजल्ट करता है या जनरेट होता है फ्रॉम डाइवर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे कि प्लांटिंग है, हार्वेस्टिंग है, मिल्क का प्रोडक्शन है, एनिमल्स के रेयरिंग है, ये सारी जो हैं ये फार्म वेस्ट में आते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा हैज़ार्डस वेस्ट। हैज़ार्डस वेस्ट जो होते हैं ये इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कंज्यूमर ओरिजिन वेस्ट होते हैं जो कि पोटेंशियली डेंजरस होते हैं, या तो इमीडिएटली या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन बींग्स के लिए और हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आ गया कि एम्प्टी कंटेनर्स ऑफ सॉल्वेंट्स, पेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स। फिर आता है हमारा स्वेज वेस्ट। स्वेज वेस्ट जो होता है ये सॉलिड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट से जनरेट होता है। मोस्टली ये ऑर्गेनिक होता है और डिराइव होता है फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक स्लज सेपरेटेड फ्रॉम बोथ द रॉ एंड ट्रीटेड स्वेजेस। ओके, फिर हमारा आता है लास्ट, वो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जनरेट होते हैं वेरियस हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से, जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के जो छिलके हो गए वो, वुड हो गया, पेपर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, बचा हुआ खाना हो गया, ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। और ये वेस्ट जो होते हैं ये डिग्रेड हो सकते हैं ईजिली, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये कंसिस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एंड द रिसाइक्लेबल मटेरियल्स। ये डिग्रेड नहीं हो सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, कैंस हो गए प्लास्टिक के, मेटल्स हो गए, ये सारे जो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में होते हैं, तो ये रिसाइक्लेबल मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारा ये सारी चीज़ें जो क्लासिफिकेशन था बेसिकली सोर्स के बेस पे एंड टाइप के बेस पे, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टडी अबाउट दी सोर्सेज, ऑल अदर सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अबाउट द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या होता है बेसिकली इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट्स, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो अभी इंडिया में प्रिवेल कर रही हैं, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर क्या ही न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं,
हमारे सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियोस के लिए, एंड लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।